So just let's take this 5 minutes of this session, the initial 5 minutes of this session, to recap what we have discussed yesterday. Through a couple of stories, we understood that what is Niti Shastra. We understood that how the practical aspects of dealing with people and situation is different as compared to the ideal aspect or the ideal way or the theoretical way of dealing with it. We talked about one of the biggest myth that we had as growing up or later also, which carried on with our life, is that Panchatantra is a book which is meant for kids. No, not at all. It is meant for adults. It is it is not a story book. Rather, it's a book for a very important subject, as we discussed in Smriti Shastra. Through a couple of stories, we understood uh, how the creator of Panchatantra, that is Acharya Vishnu Sharma ji, has weaved certain situations that a common man faces in life and has given us instructions, very clear, vivid instructions through the characters of what could be the right way of dealing in those particular situations and what could go wrong if we are not able to handle that situation. We saw two stories. The first story was who were the characters? Anyone remember? Horse and the elephants. Very nice. Thank you, sir. So it was the hare and the elephant. Through the story of the hare and elephant, we saw how resources play an important role in everybody's life and how on the surface of the earth there is always a fight for resources. Always a fight for resources. And in that fight, not it's not always the person with the physical strength that wins. Rather, it is the mental ability, the intellect, the buddhi, which comes into power and which wins over the muscular power and helps even, for example, in the story, a character like the hare to come over or to win over the elephants. Then we had a lot of discussion over it, whether the hare did the right thing or not, what happened to the elephant. So we don't know what happened to the elephant. One thing that we can say for sure is that it's just a story. Maybe nothing like that happened ever, but it's just a story to teach us something. So let's not get attached with the characters. But yes, the asking question is the right thing, because who knows, the story may get extended in our real life and we may have to face a situation which has not been discussed in the story or which may be an extension of the story. Similarly, we went ahead and we saw another, and we discussed that Panchatantra is called Panchatantra because it has got five tantras, and the story of the hare and the elephant is a story from the third tantra, that is Kakavati. Then we went ahead and discussed a story from the first tantra, that is Mitra Bheda, which was on Papa Buddhi and Dharma Buddhi. And as we went through the story, we realized that there are many lessons that we can draw from the story. It's not just a story of a wrong person and a right person, but rather it's a story of wrong mind and right mind which exist in all of us. And there are certain traits which are present from both the sides of the hemisphere of the brain. And mind is different than brain. Yeah. Okay. Then we also saw what causes a person to lie, to do false things, to cheat, and a lot of things. Oh, okay, okay. हाँ सॉरी, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और कि क्या क्या कारण है कि एक इंसान झूठ बोलता है, गलती करता है, गलत कदम उठाता है, इसके बारे में हमने जाना कि इनसिक्योरिटी जो होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं, अगर हम अपने आप में सिक्योर्ड हैं, तो वी डोंट नीड टू टेक दो स्टेप्स। वैसे कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गलत कदम उठाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। We'll continue today. Any thoughts from yesterday? Any thought that is any question rather? Thought बाद में share कर Yes, सकते हैं। Some disturbance in my audio, sir. अच्छा. I'll just try to put the mic a bit. Oh, is it better now? okay, okay. It's okay. Yes. Okay. Rajesh ji, you want to ask something? Yeah.
सर आखिरी में मुझे याद आ गया, मैंने हिस्ट्री में जो पढ़ा है कि ऑस्ट्रियन जो फौज थी उनको नेपोलियन ने ऐसे हराया था। हाँ वो जो पहली स्टोरी बताई ना आपने, वो प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है, ये जो हम फिगर्स को दिखते हैं हाँ तो प्रैक्टिकली भी उन्होंने 300 लोगों ने कुछ तो भी हराया था, यही दिखाती कि बहुत बड़ी सेना है, नेपोलियन ने हराया था। मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने पढ़ा है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी जी, आ रही है। मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ी सी बीच में कट हुई थी, थोड़ी समझ में आ गया। सर प्रैक्टिकली ना ये सभी कुछ पॉसिबल है। नीति शास्त्र जो है ये ये आइडियल सिचुएशन बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड है। तो ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है इसके अंदर, या फिर कोई भी सिनारियो नहीं है जो प्रैक्टिकली नहीं है और बस आइडियलिस्टिक है, ऐसा नहीं। ये सब हम फेस और बस इसको समझना है कि कैसे फेस करते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है जो भी हमने कवर किया, और ये होता भी है। जी प्रमोद जी। आ, ये स्टोरी के माध्यम से हम गुरिल्ला वारफेयर की भी हम सोच सकते हैं। जी जी अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, उसका भी एक रेफरेंस इसमें ला सकते हैं हम इसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पावर ऑफ एसोसिएशन का जो टेक्निक है गुरिल्ला वॉरफेयर के हाँ, लिए सर, काकुलुकियम या में ही एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही एग्जैक्टली ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर, और नॉट जस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर, बाकी हाँ, 5 प्रकार के जो युद्ध है या फिर बाकी 5 प्रकार के जो तरीके हैं डील करने के लिए, वो सारे दिए गए हैं। वो एक बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, और वो एक स्टोरी ही कभी 3-4 घंटे का डिस्कशन है। तो अगर हमें कभी दोबारा मौका मिले तो वो कहानी मैं ज़रूर लूँगा, और क्योंकि हम महाराष्ट्र से हैं, तो शिवाजी की जो टेक्निक रही है, महाराजा छत्रपति करेक्ट। शिवाजी की जो टेक्निक रही है, वो टेक्निक आपको बहुत हद तक उस कहानी में नज़र आ जाएगी, और वो कहानी बहुत बहुत ही पावरफुल कहानी है। षड्गुन्य के लिए वो कहानी लेता हूँ। तो आई होप फिर से कभी मौका मिले तो फिर मैं गुरिल्ला वॉरफेयर ज़रूर याद रखूँगा और उस चीज़ को ज़रूर कवर करूँगा। ओके सर, थैंक यू। अ, जी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारे पास 2 स्टोरी है। आई होप द टाइम परमिट्स, मैं थोड़ा-सा फास्ट जाऊँगा, आप मेरे साथ रहिएगा, ताकि मैं बस द आइडिया इज़ नॉट हियर, इफ यू गो इनटू द, अगर हम एनालिसिस करें कहानी की, तो हम बहुत कुछ एनालाइज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सूत्र मैंने जानबूझकर मिस किया है, सारे सूत्र मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। सूत्र अपने में बहुत पावरफुल है, अपने में डिस्कशन के लिए टाइम लगता है उनको। हमारा यहाँ पे आइडिया ये है, जैसे कि हमारा सेशन का थीम रखा गया है, अंडरस्टैंडिंग नीति शास्त्र थ्रू पंचतंत्र। ये समझना कि पंचतंत्र किस तरीके से नीति शास्त्र के सारे एस्पेक्ट, सारे स्कोप को कवर करता है, और हमें एक पूर्ण तरीके से एक गाइडलाइंस दे देता है कि जीवन में किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, किस तरीके से आचरण रखना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो। खासकर इंसानों के बीच जब हम रहते हैं तब दिक्कत ना हो। बाकी जानवरों के बीच जब रहें तो बात अलग है, खैर वो तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, बट इंसानों के बीच जो है कि इंसान किस तरीके से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सिचुएशन बताया गया है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट वी हैव फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। आपने सुनी होगी, तो बहुत लोग आप उस आई अज्यूम आप हम सब उस जमाने के लगते हैं, या फिर उस एज के लगते हैं जब टेलीविजन पे 2 चैनल हुआ करते थे, DD1 DD2। हम शायद उस जमाने के नहीं, मैं भी बहुत छोटा सा बच्चा था जब DD1 ही आता था। DD2 जब लॉन्च हुआ तो वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि नया प्रोग्राम आएगा। तो उस जमाने में ना टेलीविजन पे बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे एनिमेटेड फिल्म आते थे, अच्छे मैसेज के साथ। और बताइएगा कि अगर आपको याद है कि उसी सीरीज में एक ऐसा एनिमेटेड फिल्म भी आता था, नेशनल NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड, जिसका अभी मैं गाना, मैं पूरा मूवी नहीं, ये नहीं बताऊंगा फिल्म, बस आपको मैं बस उसका उसकी एक लाइन बताऊंगा और आप समझ जाओगे। उसकी जो गाने की लाइन थी वो कुछ मोगली ऐसी। मोगली 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 जंगल तो जंगल पूरा पता चला है। जी जी, वो तो पूरा का पूरा सीरीज था। मैं बस बता रहा हूँ, छोटे छोटे फिल्म आते थे जो बार बार रिपीट होते थे।
एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना वंडरफुल चुगे, वंडरफुल, वाह वाह वाह, क्या वो बात वाली सर। है। एब्सोल्युटली मिस्टर प्रकाश जी, यू जस्ट गॉट इट, मैं बोलने ही वाला था। तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो गाना ऐसा था ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक तितली अनेक तितलियां। और इसका एक पूरा एक फिल्म था छोटा सा, वो याद है आप लोग? तो हाँ सर। गुड, यस सर, पूरा याद है। पूरा याद है, वेरी नाइस। तो अभी ना वो कहानी देखिए, वो जो कहानी उसमें दर्शाई गई है, वो जो दीदी बैठ के अपने भाइयों को कहानी सुनाती है, वो कहानी कहाँ की है, कहाँ से आती है वो कहानी? वो जो कहानी है वो पंचतंत्र के दूसरे तंत्र से आती है, मित्र समप्राप्ति से आती है। मित्र समप्राप्ति की मुख्य कहानी है वो, प्रेम कहानी है। तो पंचतंत्र का एक स्टाइल है कहानी सुनाने का, स्टोरीज विद इन स्टोरीज। तो उसकी मुख्य कहानी जो जो सबसे पहली और सबसे मुख्य कहानी में से वो आती है। मेरे कैमरा थोड़ा अप डाउन हो रहा है, जस्ट शिफ्ट माय कैमरा। आज हम वो कहानी सुनने वाले हैं। What happened? Okay. एक सेकंड सर, नहीं हुआ तो फिर मैं कैमरा ऑफ करके ही कर रहा हूँ। अभी आ जाना चाहिए। Yes. हाँ, तो वो कहानी हम सुनते हैं आज, बट एक नए तरीके से सुनते हैं, एक नए उद्देश्य के साथ सुनते हैं, नीति शास्त्र को समझने के लिए वो कहानी सुनते हैं। सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास ऐसा स्क्रीन है बट आज बिना स्क्रीन के ट्राई करते हैं। So I love this. Generally, my idea of teaching is to avoid PPTs. So आज बिना कहानी के चलते हैं और बिना PPT के देखते हैं। और बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा जहाँ पे भी, अगर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, ड्राइविंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो, और बस कहानी को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओके? और विजुलाइज कीजिएगा। So बहुत सारा पहले एक छोटे से जंगल में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। बरगद के पेड़ पे अलग अलग किस्म के पशु पक्षी रहते थे। बड़ा सा पेड़ था और बरगद पेड़ के नीचे भी बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते थे। ये सब पशु पक्षी जो रहते थे ऊपर पेड़ पे, उनमें से एक था एक कौवा। कौवे का नाम था, अब याद रखिएगा, ये कौवा जो है ना, ये एक चिड़िया अनेक चिड़िया में दिखाया नहीं है। तो ये कौवा उस कहानी का मुख्य पात्र है। उस कहानी में तो वो दिखाया नहीं, क्योंकि उस कहानी का मतलब कुछ और था, यूनिटी दिखाया। सो इस बरगद के पेड़ पे एक कौवा रहता था जिसका नाम था लघु पतनका। लघु पतनका, छोटा छोटा फ्लाइट लेने वाला लघु पतनका। लघु पतनका बहुत ही स्मार्ट, कौवे जैसे जनरली रहते हैं, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही वाइज और ऐसे अलर्ट टाइम का किस्म का कौवा। एक दिन सुबह ऐसे करीबन 8 बजे, सुबह 8 बजे, लघु पतनका ऐसे अपने ब्रांच पर ऐसे डाली पे बैठा हुआ बाहर ऐसे नजर घुमा रहा था, क्या चल रहा है आजकल जंगल में, क्या चल रहा है। तभी लघु पतनका ने क्या देखा कि एक शिकारी जो है, पास ही के गांव से आया हुआ एक भयंकर खूंखार शिकारी, वो अपना जाल बिछा रहा था। उसने वहीं पास बरगद के पेड़ के पास एक जगह पकड़ी और वहां पे ऐसे जाल बिछाया और जाल को ढक दिया और
तो उसके ऊपर दाने फेंक दिए आकर्षित करने के लिए, चिड़ियों को या फिर पक्षियों को आकर्षित करने के लिए वहां पे दाने डाल दिए और जाल बिछा दिया और जाके दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया, इंतजार करने लगा कब चिड़िए फंसेंगे, पक्षी फंसेंगे और वो उनको पकड़ लेगा। अब जैसे ये सीन कौवे ने देखा, लघुपतनका ने देखा, वो तुरंत गया और पूरे बरगद के पेड़ पे सब डाली पर जाकर मैसेज पास करने लगा कि देखो भैया, यहाँ पे बड़ा खतरा है, आज कोई भी उस तरफ मत जाना, ऐसे ही खाली पड़े हुए दाने को कोई चुभने नहीं जाना, फ्री का कोई भी चीज़ रिस्की होता है तो थोड़ा दूर रहना। तो ही वॉज सेंडिंग मैसेजेस, जैसे आजकल हमारे टेलीफोन में अलर्ट आता है ना, किसी को फ़ोन करने से पहले आता है ऐसे, उस तरह का मैसेज लघुपतनका सबको भेज के आ गया उस बरगद के पेड़ पे। तो सब अलर्ट हो गए, सबने एक दूसरे को बता दिया। तो ये पेड़ पे रहने वाला कोई भी पक्षी उस ओर जाता ही नहीं था, गया ही नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, शिकारी ऐसे ही खड़ा है, कोई नहीं जा रहा। कौवा अभी भी वहीं खड़ा है, देख रहा है, सचेत कर रहा है सबको, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। 2 घंटे बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे कबूतरों का एक झुंड ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। वो कबूतरों का झुंड जो है उसका राजा था चित्रग्रीवा। चित्रग्रीवा, जिसके ग्रीवा पे, जिसके गर्दन पे एक चित्र है या फिर एक निशानी। चित्रग्रीवा ऐसे उड़ता हुआ, चित्रग्रीवा अपने टीम के साथ 15-20 कबूतर वहां से उड़ते हुए जा रहे थे ऊपर से। वो बेचारे कबूतर सुबह से ढूंढ रहे हैं कुछ खाना पानी मिल जाए, दाना पानी मिल जाए, पर मिल नहीं रहा था। तो उतने ऊपर से जब वो उड़ते हुए जा रहे थे और उन्होंने नीचे देखा, उनको दाने दिखाई दिए बट जाल नहीं नजर आया। तो दाना देखते ही चित्रग्रीवा ने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, दाना दिख गया, बहुत सारे दाने बैठे हैं। तो सब चित्रग्रीवा नीचे आता है, उसके पीछे पीछे सारे कबूतर आ जाते हैं और जैसे ही वो नीचे आके बैठते हैं और दाना चुगने लगते हैं, तो थोड़ी सी हरकत होती है तो उनको पता चल जाता है कि जाल बिछा हुआ है। वो जाल में फंस जाते हैं और जितनी जोर से कोशिश करते हैं जाल से निकलने के लिए, उतने और ज्यादा फंसते जाते हैं। बेचारा कौवा जो है, वो जो डाली पे बैठा था, वो अपने सर पे हाथ दे रहा है कि हे भाई, क्या किया कबूतरों आपने, मैं चिल्लाऊं इससे पहले तुम आके यहाँ पे खाने लग गए और फंस गए। अब वो जो शिकारी वहां पे खड़ा था पेड़ के पीछे, वो नाच कूद रहा है, अरे भाई क्या बात है, मैं 2-3 पक्षी सोच रहा था, यहाँ तो 20 के 20 कबूतर मेरे साथ एक साथ हाथ में लग गए। सो कौवा अभी बड़ा चिंतित रूप से उनको देख रहा है कि अब तो गए ये कबूतर। कबूतर बेचारे यहाँ वहां चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ राजा जी बचाओ, क्या करें, फंस गए फंस गए। तभी वो जो ये है हमारा शिकारी है, वो अपना जो पिंजरा है वो तैयार करता है इन सबको एक एक डालने के लिए। चित्रग्रीवा जो इनका लीडर है कबूतरों का, वो तभी सबको शांत करवाता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, हाँ हम फंस गए हैं, जाल बिछा हुआ है, हमने देखा नहीं, हमसे गलती हो गई, हम फंस गए, मगर याद रखना कि हम फंसे हैं, मरे नहीं अभी तक, अभी भी कोशिश करने पे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं कहूं 1, 2 और 3, मेरे 3 कहते ही हम सब के सब पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करेंगे। ना कोई बाया जाएगा, ना कोई आगे जाएगा, ना पीछे, ना दाहिने साइड जाएगा, सब के सब एक ही ताकत लगाएंगे और सब ताकत ऊपर की तरफ उड़ने के लिए लगाएंगे। बस 3 कहते ही एक साथ ताकत लगाना है। तो सब कबूतर रेडी हो गए, जी महाराज हम यही करेंगे, यही करेंगे। वो जो हमारा शिकारी है वो पिंजरा रेडी करके लेके भागते हुआ आ रहा है कबूतरों को पकड़ने के लिए। चित्रग्रीवा कहता है 1, 2, 3। 3 कहते ही सारे कबूतर एक साथ ताकत लगाने लगते हैं और देखते ही देखते सारे कबूतर तो कबूतर, वो जाल भी ऊपर उठने लगता है। ऐसा दृश्य उस शिकारी ने अपने शिकारी करियर में कभी नहीं देखा।
वो हक्का बक्का रहे, बोला ये क्या हो रहा है, गजब की यूनिटी है, ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। वो कौवा जो है लघुपतन का, उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है, उसका चोच ऐसा खुल जाता है, मतलब वाह, मानना पड़ेगा कबूतरों को, इतनी यूनिटी, इतना दिमाग। और वो जाल पूरा ऊपर उठ रहा है। शिकारी भागते हुआ आता है और जंप करके पकड़ने जाता है, बट तब तक जाल ऊपर उठ जाता है। अब ऊपर उठने के बाद चित्रगीवा सबको कहता है कि अब हम अपनी पूरी ताकत के साथ नॉर्थ की तरफ उड़ेंगे, चलो नॉर्थ की तरफ। तो अब सब के सब नॉर्थ की तरफ उड़ने लगते हैं। तो जाल जाता है ऊपर, शिकारी उनके पीछे पीछे भागता है। शिकारी नीचे कहता है, मैं जानता हूं तुम सब एकजुट होकर जाल को उड़ा ले जा रहे हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि बहुत जल्द तुम में आपसी मुठभेड़ होगा, आप आपसी मतभेद होंगे, और जैसे ही तुम्हारे बीच आपसी मतभेद होंगे, ये जाल पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस उम्मीद से उनके पीछे भागता है, बट कोई आपसी मतभेद नहीं होता। चित्रग्रीवा इतना अच्छा लीडर है कि सबको कहता है कि नॉर्थ मतलब नॉर्थ, कुछ और नहीं, ताकत लगाते रहो, बचना है तो ताकत लगाते रहो। ताकत लगाते जाता है, जाता उड़ते आता है। लघुपतन का ये देखकर कि यार ये तो कमाल हो रहा है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, वो अपनी डाली छोड़ता है और फॉलो करता है उन कबूतरों को। शिकारी कुछ देर तक, करीबन 5 मिनट उनके पीछे पीछे भागता है, फिर थक के वो भी गिर जाता है धड़ाम से। उसके पूरे कबूतर भी गए और साथ ही साथ जाल भी गया, बेचारा, बैड लक। कबूतर उड़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, शिकारी से पीछा छूटा है, बट प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। जाल अभी भी बाकी है, पैर अभी भी जाल में फंसे हुए हैं, उड़े जा रहे हैं। कबूतर पूछते हैं कि महाराज अब इस जाल का क्या करें, कैसे निकले, कि कहीं पे भी हम नीचे उतरे तो फिर कोई ने दूसरा शिकारी खा ही लेगा हमको। तो कहता है, डरो मत, उड़ते रहो, हम जा रहे हैं मेरे एक दोस्त की तरफ। वो दोस्त, वो जो मित्र है मेरा, मित्र, दोस्त तो नहीं, मित्र, जैसे हमने कल डिस्कस किया, वो जो मित्र है मेरा, वो हमें इससे छुड़ा देगा, इससे आज़ाद कर देगा। Okay, sir, I'll use English occasionally. So the dove, the group of pigeon, they are flying with the net, and the problem is not fully solved. They want to get out of that net. So Chitragriva, who is the king of the dove, he has a friend. He has an ally, and he is very sure. Chitragriva is very sure कि वो जो दोस्त है वो हमें इस प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। तो सीधा उड़ते हुए, आफ्टर फ्लाइंग फॉर लेट्स से अबाउट 15-20 minutes or 30 minutes, they reach a point where Chitragriva's friend used to live. Who is that friend? The friend that Chitragriva is so sure about is a mouse, एक छोटा सा चूहा जिसका नाम है हिरण्यका। अगेन हिरण्यका वहां पर पहाड़ के उस तरफ अपना एक घर बना के जी रहा है। he is living in his own house. The house is not short of a fortress. वो खुद एक किला की तरह है, एक गढ़ की तरह है। हिरण्यका ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, considering his own safety, has made 101 entry and exit points in that house. Only he knows where to enter and where to exit. बाकी कोई भी जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। So he is living there inside the house. The dove, led by Chitragriva, they reach that point. And now Chitragriva is calling Hiranyaka. उसको पुकारता है, हिरण्यका, my friend, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, I need your help. हिरण्यका जैसे ही ये शब्द सुनता है, हिरण्यका डर जाता है और छुप जाता है। बोला, who is it? कौन हो तुम? मुझे अपना परिचय दो. Give me your introduction. Introduce yourself. Who are you? Then Chitragriva says, I am Chitragriva, your friend. Remember?
Hiranyaka remembers that. Yeah, I know somebody called Chitragriva, but what is a surety that you are Chitragriva? Give me some proof that you are Chitragriva. So then Chitragriva tells that aisa hua tha, we had met earlier and so. So after giving all this proof, verification process, Hiranyaka is satisfied that yes, ye Chitragriva hi. So Hiranyaka comes out, and when he sees Chitragriva and his other pigeons, dove, entrapped in that net, he's shocked. He asks, "Oh my God, Chitragriva, kya hua? What happened to you?" So Chitragriva says, "It's a long story. We got trapped in this net because of our own greed. So please release us. I know you can do it. Please help us come out of this trap, come out of this net." Chitragriva says, "Yes, my friend, anytime with the help of my teeth, मेरे दांतों के साथ, शार्प नोकीले दांतों के साथ मैं ये जाल अभी काट दूंगा और आप सबको आजाद कर दूंगा. I'll free you all." Then Hiranyaka goes and starts cutting the net around चित्रग्रीवा's feet. पहले चित्रग्रीवा को रिलीज करने के लिए वो आगे बढ़ता है. Then चित्रग्रीवा objects. He says, "No, no, 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 my friend. पहले मुझे नहीं छुड़ाओ, पहले मेरे साथियों को छुड़ाओ, फिर मुझे छुड़ाओ." हिरण्यका कहता है, ये कैसी नीति है? This is not the right way to do. You are the leader of the pack, so you should be released first. चित्रग्रीवा कैसा है? नहीं नहीं, this is not the right नीति. I am the leader, so it's my responsibility to make sure that my citizens are safe first. So first you release them. Hiranyaka says, "But how come? A team is as good as a leader. If the leader is no more, then the team does not exist. They will die. The organization will collapse." Chitragriva again argues. He says, "No, my friend, you are saying the wrong thing. Listen carefully. If you release me first, and then there is a trouble, then there is any danger, then this people get this my friends or my team will get stuck. वो फंस जाएंगे. Then how can I fly without them? But if you release them first, and then there is a danger, even if I am stuck, I can order them to fly away, and they should fly away." Now Hiranyaka बहुत खुश होता है. He is very happy. Now, wow, I have a very good friend. He is not a good friend. He is not just a good friend, but he is also a very considerate, empathetic leader. So that's good. उसको प्राउड फील होता है. चित्रग्रीवा, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू. तो जाता है, पहले बाकी सब कबूतरों को छुड़ाता है और फिर चित्रग्रीवा को भी छुड़ाता है. सब छूटते हैं, सब हिरण्यका को जय जयकार करते हैं. दे ऑल प्रेज हिरण्यका. थैंक यू हिरण्यका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ वंडरफुल फ्रेंड, वी विल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू, ग्रेटफुल टू यू. ऐसा कह के बाय बाय बोल के सारे कबूतर उड़ के चले जाते हैं. हिरण्यका अपने घर में अंदर चले जाता है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, because the main conversation still remains. ये सबको होता हुआ कौन देखता है? The entire incident is being watched by who is watching this? लघुपथ Wonderful. लघुपतनका. लघुपतनका. So लघुपतनका is like, oh my god, एक ही दिन में इतने सारे लेसन सीखने मिल रहे हैं मुझे. This is one beautiful day. Maybe he is also undergoing a training. It's like a training MMTC जैसे कर रहा है. It's a day where I'm learning so much. First I learned from what happened in my in that net, and now I'm seeing this cute little mouse doing all these wonders. मुझे इस चूहे से दोस्ती करनी पड़ेगी. I will have to have an ally. I should have an ally like this.
mouse. I will offer to become his friend. याद रखना, we should not forget. चूहे और कौवे के पीछे जमती नहीं है. कौवा जो है चूहे को खाता है. So the mouse is a food for the crow. Okay, but the crow is smart enough to understand that this mouse is beyond just the food for him. तो लघु पतना का वहां से उड़ के आया और वो बिल के पास जाता और आवाज लगाता, हिरण्य का बाहर आओ, कम आओ, आई वॉन्ट टू मीट यू. Hiranyaka is again surprised, like, who is the next person coming today? He asks, who are you? And why do you want to meet me? He says that I am Laghu Patanaka and I want to become your friend. I want to establish friendship with you. Then Hiranyaka says, sorry, but I don't know anybody called Laghu Patanaka. Who Laghu Patanaka? He says, I am Laghu Patanaka, a crow from the nearby forest. I saw you releasing all the doves, all the pigeons. Hence I have come here to be your friend. जो चूहा है हिरण्यका, he is so scared now, he goes 10 steps within his house after listening that he is a crow. He said that go away from here, चले जाओ यहाँ से अभी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, go away from here, forget about friendship, I don't even want to talk to you, go away from here. Then Laghu Patanaka says, listen my friend, you don't have to worry about anything. I really want to be your friend. I saw your skills. I heard what you said. I got a glimpse of your wisdom. So in all this case, what I have made sure is that I want a friend like you. मुझे आपसे दोस्ती करनी है और कोई मतलब नहीं है मेरा. Then हिरण्यका कहता है, तुम पागल हो क्या? कौवे और चूहे के पीछे कभी दोस्ती हो सकती? आप शिकारी हो, मैं शिकार. शिकारी और शिकारी के बीच में दोस्ती नहीं होती. जंगल का कानून है, नियम है, नेचुरल लॉ, इसको हम तोड़ नहीं सकते. बेवकूफ़ी होगी मेरी अगर मैं बाहर आ जाऊँ और आपसे मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ या फिर आपकी दोस्ती मांगने को. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फुलिश स्टेप. टेक दिस फुलिश स्टेप. प्लीज गो अवे. नो टॉकिंग फ्रॉम हियर. गो अवे. देन लघु पतनाका सेज, लिसन माय फ्रेंड, मैं इतने भी छोटे दिमाग वाला नहीं हूं. आई एम नॉट दैट नैरो माइंडेड that I will assume you as a food. अगर मैं आपको खाने की तरह देखूं तो मेरा एक वक्त का या फिर एक दिन का खाना पीना पेट भरना, एक दिन के लिए पेट भरना. मगर मैं आपको अगर मेरे मित्र की तरह देखूं तो शायद आप मेरे जीवन भर काम आ सकते हो. अब मैं इतना भी छोटा नहीं सोचने वाला. और आपको भी बता दूं कि अगर आप मुझसे दोस्ती करते हो और ये दोस्ती सफल होती है तो डेफिनेटली आपका एक दुश्मन तो गया. और ये कौवा अगर आपका दुश्मन नहीं रहेगा तो आई एम श्योर बहुत सारे कौवे आपके दुश्मन नहीं रहेंगे. तो जरा ध्यान से सोचिए, मेरी बात पे यकीन कीजिए. आई रियली वॉन्ट टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ योर्स. हिरण्यका इज नाउ अंडरस्टैंडिंग. हिरण्यका इज सेइंग, बात में सच्चाई है और जो कह रहा है बात वो भी अच्छा कह रहा है. तो थोड़ा सा बाहर आता है. He comes and he takes a few steps ahead but doesn't come out of the house. He says, you seem to be a wise crow. आपकी बातों में बुद्धि का प्रदर्शन है. परंतु अगर मैं बाहर आ गया तो इट विल बी अ फुलिश थिंग टू. मैं जान सकता हूँ कि शायद आपकी बात में सच्चाई है. Whatever you're saying is truth. But I don't want to appear foolish to come out and greet you in the first meeting itself. So please, I don't want to do this.
देन लघुपतना का अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट रखता है. He says, listen, शास्त्रों में कहा गया है 7 कदम अगर कोई साथ चल ले तो वो आपका मित्र बन जाता है, हमसफर बन जाता है. 7 बोली अगर आपने किसी के साथ शेयर कर ली, 7, if there is an exchange of 7 phrases or 7 sentences between 2 people, then both are bounded by that conversation. They become friends. और हमने तो 7 से अधिक बातें शेयर कर ली है, तो नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम तो ऑलरेडी दोस्त बन ही गए हैं ना. हिरण्यका smiles and he says that you are certainly a very wise and well read crow. आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बुद्धिमान हो, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए. मगर लघुपतना का मैं ये रिस्क कभी नहीं उठा सकता. एक काम करते हैं, कुछ दिन तक आप बाहर रहिए, मैं अपने बिल के अंदर रहता हूँ. Let's meet for a few more times and then see if we can take this friendship forward. If we get the confidence, then I may come out of my house and then we can carry on with this friendship. Lagupatana agrees. He says that as you say, sir, we will meet every day and I will stay within my limits. You stay safe inside your house. Appreciate your step. लघुपतना का उड़ के चले जाता है. नेक्स्ट डे लघुपतना का फिर आता है, अपने चोंच में कुछ दाने लेके आता है, छोटे छोटे दाने लेके आता है और हिरण्यका के बिल के पास रखता है और कहता है, हिरण्यका, आई हैव कम टू मीट यू एज प्रॉमिस्ड, आई विल स्टे आउटसाइड. मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ. हिरण्यका देखता है, अरे वाह, कुछ दाने लेके आया है, एंड बहुत ही सेफली हो जाता है और उसको खाता है. फिर दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर about life, about politics, maybe about sun, moon, stars, whatever it is, about philosophy. ऐसे discussion चलता रहता है, what's happening in the forest. Then again next day लघुपतना का again comes and he again brings some grains in his beak. This time हिरण्यका also brings something from his side. वो भी कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपनी तरफ से लेके आता है, छोटे कुछ खाने की चीजें अपनी तरफ से लेके आता है. Now they are exchanging words. देखते ही देखते 1 महीने के अंदर दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि हिरण्यका अपना बिल छोड़कर बाहर निकल आता है और कौवे के साथ आराम से बैठ के गप्पे करता है. ये कहानी आगे भी चलती है, फिलहाल के लिए हम उसको यहीं रोकेंगे. दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. That's मित्र समप्राप्ति. कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी और आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो सर. वेरी नाइस. धन्यवाद. फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग. You are a good narrator. Oh, thank you, ma'am. Thank you. The story is a beautiful one. I am sure that we remember our childhood where we used to hear this story or see this story on television. Yeah, so multiple things in this story. Okay, many things. There are a couple of sutras which were not discussed. Again, I'm saying, but they're very, very powerful. Mitra Samaprapti is how to gain an ally. How to gain an ally. Ally वो व्यक्ति जो मेरे काम आ सके. और ऐसा नहीं कि मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट फायदा उठाने के लिए नहीं. एक्चुअली अलायंस इज टू वेज, इट्स अ टू वे प्रोसेस. हर रिश्ता जो रहता है वो दो तरफा होता है, लेन देन होता है. यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं रहता. जैसा न्यूटन ने कहा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन. सो every link between two entities remains a healthy link only when there is a bidirectional flow happening in that link. And this, one of the message of the story is this. First message is how to make alliance. किस तरीके से रिश्ते जोड़ने हैं, कोई भी रिश्ता, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कोई भी.
किस तरीके से रिश्तों की शुरुआत करनी है। शुरुआत होने से पहले ये जानना जरूरी है क्या सामने वाला रिश्ता बनाने लायक है भी या नहीं। जैसे लघुपति तनाका ने किया, उसने देखा कि वाह, ये इतना बुद्धिमान चूहा है, इतना स्किलफुल चूहा है, इसको खाकर क्या लाभ मिलेगा, इससे तो रिश्ता जोड़ना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा लाभ मिलेगा और काफी दिन तक मिलेगा। तो वो दूरदृष्टि जो है वो हम में होनी चाहिए, वो समझ हम में होनी चाहिए कि किससे रिश्ता बनाए रखना है और कितना घनिष्ठ रिश्ता बनाए रखना है या कितना नहीं बनाना है, ये समझ हम होनी चाहिए। That we have to identify who is worth it and who is not worth it. And whoever is worth it, sometimes we have to take that extra effort to establish that relationship. जैसे लघुपति तनाका ने किया, he didn't give up, he took that extra effort to establish that relationship. And then there is an effort which is required to maintain that relationship. लेन देन हमारे समाज में, महाराष्ट्र में I'm sure बहुत ही कॉमनली होता है। हर कोई शादी पे बुलाता है, कोई किसी फंक्शन में बुलाता है, तो देयर इज अ व्यवहार विच इज गिवन, उसको व्यवहार ही बोलते हैं। वो पॉकेट हो या फिर कुछ भी हो, इट्स नॉट पैसा, इट्स नॉट द मनी दैट मैटर्स, इट्स नॉट द मनी, that money is a representative of the desire or the will of the other person to keep the relationship alive. जिस दिन वो आदान प्रदान बंद हो जाता है उस दिन उस रिश्ते पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और जितने देर तक वो बंद रहेगा धीरे धीरे वो रिश्ता मर जाता है। तो हमारे एंसेस्टर, हम भी करते हैं ना, काफी सोच समझ कर करते थे, भले हम उनके शादी में जाएं या ना जाएं, बट हमारा व्यवहार वहां पहुंच जाना चाहिए। क्या शब्द है, क्या प्यारा शब्द है, उसको हम गिफ्ट नहीं बोलते, उपहार नहीं देते, हम उसको व्यवहार देते हैं। Token of love. Token of love. It's a token of intention. It symbolizes our intention that yes, we are there with you. Your existence for us, this relationship between us matters to you. And that's such a beautiful way of putting it. We don't call it gift. We call it vyavahar. And no better word for it. No better word for it. It's a beautiful word. It should be called vyavahar. उपहार, उपहार तो उसके ऊपर जो दिया, व्यवहार तो व्यवहार है। So that is how our culture is. That is the basis of our, multiple ways in which it's manifested. But just look at this transaction. And then we, modern world, जब हम धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में, हम रिश्ता थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, हम इनकी जरूरत नहीं, इनको क्या ही जाना, क्या करना, ठीक है, हम अपने लाइफ में बिजी हो गए। तो एटलीस्ट हमारे माँ बाप या फिर हम कुछ जनरेशन पहले वो जानते थे ये इम्पोर्टेंट। हम आजकल ये प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं शायद, बट पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम है, इसके लिए फैमिली भी छोटा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी इसको करना जरूरी है, शुड बी सेड। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इवन अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं करना, इवन अ गुड व्हाट्सएप मैसेज ऑन सर्टेन डेज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट डेज फील्स गुड। रिमेंबर, दो लोगों के बीच में रिश्ता तब तक है जब तक उनको जोड़ने वाला जो लिंक है, जो पाथ है, वो बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नीति। लघुपति तनाका कितना प्यारा कौवा है, कितना वाइस कौवा है, कितना क्यूरियस सा कौवा है, जानना चाहता है क्या चल रहा है, सीखना चाहता है, नए दोस्त बनाना चाहता है, देखता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बाकी लोगों को भी आगाह करता है, सूचित करता है, शेयर्स द इंफॉर्मेशन।
He helps others. Then look at the dove, the pigeon, the कबूतर, फंस गए, उनका राजा चित्रवीर कितना सही राजा, यूनिटी की ताकत वो जानता है, कैसे अपने आप को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने आप अपना संतुलन में बनाए रखना है, वो जानता है, अच्छी तरह निभाया। और उसने रिश्ते भी देखो किससे बनाए हैं, चूहों वगैरह तक कभी काम आ सकता है। बुरे वक्त पर उसको ध्यान आता है कि कौन मेरे काम आ सकता है, और वहां जाने के बाद भी इतनी समझ रखता है कि कहे कि मेरे टीम को पहले छुड़ा, बाद में मुझे छुड़ा। हिरण्यकश्यप एक चूहा जानता है कि आसपास खतरों से घिरा हुआ है, इसके लिए अपने घर को उसने ऐसे बनाया है कि 101 एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स। कोई भी आता है उनका वेरिफिकेशन कोड लेता है, ओटीपी लेता है, पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, तभी बाहर आता है। मदद भी करता है, बातें भी करता है, और अपनी बुद्धि के बल से कौवे जैसे शिकारी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। सिर्फ बुद्धि बल तो है और थोड़े से स्किल्स है, अपने दांतों के स्किल्स, स्किल सेट, इंटेलेक्ट, नॉलेज, विजडम, resources. These are the things which attract others towards you to become your allies, to become your partner. अगर मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो कोई मेरे से क्यों ही अलायंस जोड़ेगा। हाँ, शायद दोस्ती कर ले, मतलब ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मेरा दोस्त बन के रह जाए, गप्पे पे मार ले, घूम फिर ले, बट अलायंस नहीं। इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक अलायंस बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। ये कहानी आगे चलती है और फिर बहुत ही बड़ा अच्छा सा टर्न लेती है, 2 और लोग जुड़ते हैं इस कहानी में, 2 और जानवर जुड़ते हैं। कभी मौका मिले तो फिर ये कहानी को फिर और हम आगे बढ़ाएंगे। एनी पॉइंट्स ऑन दिस? अदरवाइज आई विल जस्ट हैव हाफ एन आवर टू कंप्लीट द नेक्स्ट स्टोरी आल्सो। और कुछ सीखने मिला हम इस कहानी, और कुछ पॉइंटर? सर आई वांट टू ऐड समथिंग। पावर ऑफ यूनिटी के संदर्भ में एनिमेशन एक मूवी है फाइंडिंग नीमो, उसने भी बिल्कुल वही नजारा या प्रसंग को उद्घाटित करने की कोशिश की गई। बिल्कुल सर, यार बहुत ही सुंदर मूवी है, जरूर देखिएगा। फाइंडिंग नीमो बहुत बड़ी प्यारी सी मूवी है। जी सर। हेलो सर। सर हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। अमित सर, यू आर ऑडिबल। या आई वांट टू ऐड समथिंग। जैसे कि वो आपने बताया, लघु पत्रिका ने कहा कि एक दिन में इतने सारे लेसन्स, तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपका लेक्चर अटेंड करने के बाद हम भी यही कह सकते हैं कि इतने सारे लेसन्स एक दिन में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। यस सर, चलिए हमारा। जी सर, गिरीश जी। हाँ सर, वो मैं ये कहना चाहता था कि जो शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में भी दोस्ती हुई थी, मगर वो शिवाजी महाराज सावध थे। ये कौवा और चूहे की जो आपने कहानी बताई है, वो अगर दोस्त बन रहे ठीक है, पर वो सावधानता ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है सर इसमें। जी सर, वो दोस्ती टिकी नहीं ज़्यादा देर तक। कोशिश तो शिवाजी महाराज ने अच्छी की थी और बहुत ही सूझबूझ के साथ की थी, बट वो चल नहीं पाए। खैर ठीक, अपना अपना विचार होता है। फाइनली आगे चल के उनको समझा, एक राज्य कैसे आगे बढ़ा, दूसरा राज्य खत्म हो गया जल्दी। यस, एक्चुअली शिवाजी महाराज के भाई को उसके पहले कूटनीति के माध्यम से और अफजल खान ने एक युद्ध में मारा था। वो उनको याद था कि ये विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, इसलिए खुद होकर कभी मिलने नहीं गए जी। और एक बार गए भी तो बंदी बना लिया गया। हाँ, नहीं, उनको अफजल खान की प्लानिंग थी, वो पहले समझ ली शिवाजी महाराज ने, तब जाके योजना बनाकर उनको पराजित किया। जी जी। और औरंगजेब के साथ भी कुछ ऐसा ही था, बट फंस गए थे थोड़ी देर के लिए, बट चालाकी से निकल आए वहां से, दिल्ली से करके गए। जी 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 जी। ओके, तो ये शिवाजी महाराज की पूरी कहानी जो है, शिवाजी, ऐसे कहा जाता है कि अगर उनकी पूरी बायोग्राफी हम ध्यान से देखें तो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के बहुत सारे लेसन उसमें छुपे हुए हैं, बहुत सारे। रजित देसाई जी की जो बुक है ना, क्या नाम उसका, क्या नाम, मैं भूल गया बुक का नाम, पढ़िएगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी ऑलरेडी।
नाम सुना है मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे भी किताब का। जी, रंजीत देसाई जी की किताब है, बहुत श्रीमान बहुत योगी, श्रीमान योगी। श्रीमान योगी, श्रीमान योगी बहुत ही प्यारी किताब है, पढ़िएगा। इसके अंदर अच्छे स्वरूप से दिखाया गया है कि किस तरीके से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का बखूबी उपयोग किया है उन्होंने। अच्छे गुरु मिले थे उनको, काफी उपयोग किया, अच्छे केस स्टडीज हैं, बहुत ही अच्छे। सर आपके वक्तव्य से विशेष रूप से बाल सिनेमा, बाल साहित्य के संदर्भ में भी जो एजुकेटर है हम इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बाल मनोविज्ञान को समझना आज की एक चुनौती है और उनकी जो जरूरतें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसे समझकर साहित्य को सरलतम भाषा में प्रस्तुत करने की भी एक चुनौती है। तो हम बहुत कोशिश बढ़िया करेंगे इस दिशा में। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि यही चाहिए हमें। नॉलेज को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि समझ में ना आए। जितनी सरलता से आप पेश कर पाओ उतना अच्छा समझ में आना चाहिए। सिंप्लिसिटी is what is missing in today's education. One of the things that is missing in today's education is simplicity, making it simple. So बहुत अच्छा लगा आपके बात सुनकर सर, कि चाइल्ड साइकोलॉजी और स्टूडेंट साइकोलॉजी के ऊपर जैसे हमें उसको समझना चाहिए और उसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी कुछ सीख पाए और अपने आप में एबल हो सके, काबिल हो सके संभालने के लिए चीज़ें। बिल्कुल सर, कंप्लीटली एग्री। चलिए एक आखिरी कहानी लेते हैं बिफोर वी मीट नेक्स्ट टाइम। एंड ये कहानी भी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, बट थोड़ा सा अलग ढंग से देखेंगे। आई थिंक देखने का तरीका थोड़ा बदलेंगे इसका। दिस स्टोरी, अच्छा आई विल शेयर द स्लाइड। ये कहानी जो है, अभी तक हमने मित्र भेदम की एक कहानी देखी, मित्र समप्राप्ति की एक कहानी देखी, काकलोकियम की एक कहानी देखी। हमारे पास समय नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि लब्ध प्रनशम की जो कहानी है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताया था। ये जो आखिरी कहानी है आज हमारे लिए, हमारे साथ, ये है अपरीक्षित कारकम। रिमेंबर व्हाट वी टॉक्ड अबाउट अपरीक्षित कारकम? Ill-examined actions or actions performed without thorough examination is what aparikshit karakam is. And this story, which we may have heard when we were kids, will give an idea about why it is called as aparikshit karakam. So let's see this. Long ago, there lived a Brahmin and his wife. So एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, एक हस्बैंड और वाइफ। इनकी शादी को करीबन 10 साल हो चुके थे, बट अभी तक कोई संतान नहीं हो रही थी। सो दे वर चाइल्डलेस एंड आफ्टर many attempts, many failed attempts, still they were not bearing any child. घर, they were not very rich, ज़्यादा ऐसे पैसे वाले नहीं थे, छोटा सा एक घर था। हमारा ब्राह्मण जो है वो यहाँ वहाँ जाके पूजा पाठ करके भिक्षा मांग के जो भी मिल जाता था वो लेके आते, वो खाता। घर शांत था, सब दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा था, सुखी थे। बट वो जो एक कमी है, एक बच्चे की कमी जो है, वो हमेशा खलती थी, वो हमेशा डिस्टर्ब करती थी उनको कि काश हमारा भी एक बच्चा होता, काश हमारा भी बच्चा होता। तो दोनों को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके ना, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब 10 साल बाद the Brahmani, the wife, got pregnant, और 9 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। पहली बार उनके घर में ऐसे बच्चे की रोने की आवाज़, जो किलकिलाहट बोलते हैं, वो सुनाई दी और हेल्दी एक बच्चा पैदा हुआ। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। ये ब्राह्मण जो है वो कहता है कि इतनी अच्छी घड़ी के दिन, इतनी शुभ घड़ी के दिन, मैं कुछ लोगों के लिए कुछ बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ ले आता हूँ। तो वो जाता है मिठाई लेने, खुशी से भरा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का चेहरा अभी भी देखा है।
बाजार जाता है, कुछ मिठाई लाता है, और घर लौटते समय रास्ते में वो देखता है कि एक मादा नेवला, फीमेल मंगूस हैज पास्ड अवे, अभी अभी मर गई है रास्ते के कोने में, रास्ते के साइड में। और उसका नवजात शिशु, द न्यूबॉर्न चाइल्ड ऑफ द मंगूस, वो उसकी माँ की मरी हुई लाश के आजू बाजू घूम रहा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब ये दृश्य देखकर ब्राह्मण का दिल जो है वो पिघल जाता है। अभी अभी पिता बना है, तो पितृत्व का भाव जो है भरा हुआ है उसके अंदर। तो बड़े ही प्यार से उस बच्चे नेवले को अपने साथ उठाता है, अपने हाथों में उठाता है, और अपने बैग में डालकर वो अपने घर ले आता है। घर जब पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि मिठाई ले आए? तो उसने बोला हाँ मिठाई ले आया है मैं, मगर मिठाई के साथ मुझे रास्ते में कुछ और मिला जिसको मैं ले आया, तुम्हारी अनुमति के बिना ले आया, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है बताओ क्या कहना चाहते हो? तो बोलता है ये रास्ते में मुझे ये मंगूस पड़ा हुआ मिला, नेवले का बच्चा। इसकी माँ मर चुकी थी और ये भटक रहा था, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, मेरे कदम आगे बढ़े नहीं और मैं उसको ले आया। तुम कहो तो मैं उसको वापस छोड़ आता। तो उसकी माँ जो है, मतलब उसकी बीवी जो है, वो भी अभी भी माँ बनी है, तो उसके अंदर भी वो मातृत्व के भाव है। तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिना माँ का जो बच्चा है वो मर जाएगा बाहर, मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। आज से मैं ये मान के चलूंगी कि मेरे एक नहीं 2 बेटे जन्मे हैं आज, ये छोटा बच्चा और ये मेरा बड़ा बच्चा, इन दोनों को मैं अपने साथ पालूंगी। सो दोनों को पालने लगती है, वह घर में पलते बढ़ते हैं। 6-8 महीने हो जाते हैं, 7-8 महीने हो जाते हैं इस बात को। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा है, नेवला जल्दी बड़ा हो रहा है। नेवला छोटा जानवर है, वो जल्दी बड़ा होता है। 8 महीने उसके लाइफ के बहुत बड़े, काफी लंबा समय है। तो नेवला ऑलमोस्ट हट्टा कट्टा ऐसा, 8 महीने में काफी बड़ा हो गया है। बच्चा 8 महीने में मुश्किल से ऐसे बैठ पा रहा है, दोनों खेलते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे जैसे नेवला बड़ा हो रहा है, मंगूस बड़ा होता है और उसके दांत वगैरह निकलने लगते हैं, माँ की चिंता थोड़ी बढ़ने लगती है। माँ को लगता है कि ठहरा मंगूस एक जानवर, कहीं कुछ ऐसा ना कर दे मेरे बेटे के साथ जिससे प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो दुविधा है, ये जो शंका है, वो नेवले के मन में, उसके माँ के मन में हमेशा रहती है। वो कभी उसके पति के साथ ये शेयर नहीं करती, बट उसके मन में हमेशा रहता है। तो आसपास काम करते वक्त भी एक नजर हमेशा उस नेवले पे या फिर अपने बच्चे पे लगाए रखती है, ताकि कुछ गड़बड़ ना। माँ होती है, अपना बच्चा होता है। एक दिन क्या होता है, उस पत्नी को नदी पे पानी भरने जाना होता है। घर में उसका पति रहता है। वो पति को बोलती है देखो बच्चा घर में है, नेवला खेल रहा है उसके साथ, जरा नजर रखना, मैं अभी पानी भर के आती हूँ। और वो जाती है। जब पानी भरने जाती है तब पास ही के घर से उसके पति को बुलाने के लिए कोई आता है, कहता है कि जरा पापा ने बुलाया है, आप आइए, जरा काम। अब ब्राह्मण उठता है, वो देखता है कि बच्चा खेल रहा है, अच्छा नेवला भी उसके साथ खेल कूद रहा है, और 2 घर छोड़ के ही जाना था उसको, और बीवी तो आने ही वाली है, 5 मिनट तो मैं ऐसे भी आ जाऊंगा। तो वो उनको ऐसे ही छोड़ के निकल जाता है। अब घर में बचे 2 लोग, छोटा बच्चा और नेवला। तभी क्या होता है, एक सांप आता है। सांप ऐसा रेंगता हुआ, घूमता हुआ उस घर के अंदर प्रवेश करता है। बच्चा छोटा है, बच्चे को कोई आइडिया नहीं कि सांप क्या होता है, बट नेवला तो बड़ा हो चुका है, उसके एनिमल इंस्टिंक्ट जाग चुके हैं। नेवला जानता है कि ये खतरनाक चीज है, डेंजरस है। तो नेवला जो है वो सांप और बच्चे के बीच में आ जाता है, और खूब लड़ाई होती है फिर सांप और नेवले के बीच। और नेवला जो है
उस सांप को मार गिराता है, उसके चिथड़े चिथड़े कर देता है, काट के उसको ऐसे मार डालता है। और उसको बड़ी खुशी होती है कि मैंने अपने भाई की जान बचाई है। तभी उसी वक्त नेवले को आवाज आता है कि माँ आ रही है। वो अपना घड़ा लेके बात करते हुए उधर से आ रही है। तो नेवला इस आशा में कि मैं जाके माँ को बताऊंगा, कि माँ को दिखाऊंगा कि देखो, खुशी से ऐसे बताऊंगा कि माँ को मैंने भाई की जान बचाई, ये सोचकर नेवला घर के बाहर निकल जाता है। मुंह में खून लगा हुआ है, हाथों में खून लगा हुआ है, सब ऐसे लेके घर के बाहर निकल जाता है। उसकी माँ जो है, ब्राह्मणी जो है, जब देखती है नेवले को ऐसे हालत में, मुंह में खून, हाथों में खून, ऐसे करके दांत बाहर निकला हुआ है, उसको लगता है कि मैंने जो ऐसे बुरा सपना देखा था, कहीं वो सच ना साबित हो गया। वो जोर से चीखती है ये सोच के कि मेरा बेटा मारा गया है, इस नेवले ने उसको काट लिया। वो घड़ा लेके नेवले पे धड़ाम से मार देती है और चीखते हुए अंदर भाग के जाती है। घड़े का आवाज सुनकर, टूटते हुए घड़े का आवाज सुनकर, 2 घर छोड़ के जो उसका पति था वो भी भागता हुआ आता है। वो भी घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर जाके दोनों पति पत्नी देखते हैं कि बच्चा तो खेल कूद रहा है, हंस रहा है। उसके बगल में जहरीला सांप, नाग यहाँ पे ऐसे मरा पड़ा है। तब ब्राह्मण को समझता, अरे बाप रे, नेवले ने तो मेरे बच्चे की जान बचा ली है, बेचारा कैसा होगा। तो भागते हुए आती है और बाहर अपना घड़ा उठा के देखती है तो नेवला मर चुका। वो अपने पति को बहुत कोसती है, तुम क्यों छोड़ के गए, तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की जान, बट जो हो गया वो तो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते। अब वो दोनों पति पत्नी उस एक बच्चे के साथ और नेवले की याद में वैसे ही रहते। सो या, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आपने सुनी होगी ना कहानी? सर ये सुपरिचित कहानी है। बहुत ही परिचित सी कहानी है। आई थिंक सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में भी था, नॉट मिस्टेकन। नाउ सी व्हाट आर द रिफ्लेक्शन। जी, संस्कृत में था। यस सर। नाउ सी व्हाट आर द रिफ्लेक्शंस। जी बोलिए। सर एक जल्दबाजी में असावधानी पूर्वक निर्णय लेना। बिल्कुल वही है अपरिचित कारकम। वही समझाना चाहता है कि डिसीजन मेकिंग इज नॉट द इंस्टिंक्टिव प्रोसेस, एटलीस्ट नॉट फॉर द ह्यूमंस। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच समझ लो, चीजों को भांप लो और उसके बाद अपनी बुद्धि का उपयोग कर सही और गलत का अनुमान लगाते हुए फिर कदम बढ़ा। ये हमेशा करना थोड़ा मुश्किल है, बट यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये करना चाहिए, वरना instinctively taken reactions have always been a case of regret later on। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, ये क्यों किया, एक बार सोच लिया होता, एक बार रुक गया होता, समझ लिया होता। अपरिचित रोज ही घटता है, रोज ही घटता है। अच्छा ठीक है, रोज ही होता है। क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो गलत होने की संभावना बढ़ती है। जी, क्रोध में हो या फिर डर से हो, फियर, डर से हो, ये जो है लालच से हो, ये जब हम लेते हैं और बिना बुद्धि दी है ना, भगवान ने बुद्धि दी है, इसका उपयोग बिना किए जब हम इंस्टिंक्टिवली ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, बाद में बहुत बार, और कदम मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि कुछ करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे मुंह से निकल जाता है जिसके लिए हमें बहुत लेट तक उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। गुणवंत जी, आप थोड़ा सा माइक ऑफ कीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज। थैंक यू।
सो ये कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है कि परीक्षा पहले कर लो, सिचुएशन क्या है उसकी अच्छे से परीक्षा कर लो, जांच कर लो और उसके बाद कार्य करो। बिना परीक्षा लिए, बिना परीक्षा किए, बिना जांच किए अगर हम कोई मेजर कदम उठाते हैं, इंस्टिंक्टिवली उठाते हैं, तो इससे हानि पहुंच सकती है, हम ही को खेद हो सकता है हमको बाद में। तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए बिफोर वी टेक एनी सच डिसीजंस। ये हमको सर समझ इसमें एक्सक्यूज मी सर, बोलिए इसमें सर। एक ट्रस्ट भी हम लोग एक बोल सकते हैं ना, अगर उस लेडी को, ब्राह्मण लेडी को ट्रस्ट रहता उस मंगूस के ऊपर, वेरी गुड, तो वो डिसीजन ही नहीं ऐसा लेती। बिल्कुल तो वो भी एक फैक्टर है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ट्रस्ट, डाउट जो है, सस्पिशन जो है, शंका, शंका कभी कभी भयानक रूप ले लेती है दिमाग के अंदर, और एक हल्की सी शंका, बेबुनियाद शंका भी अगर हमारे दिमाग में है, कभी कभी भयानक रूप ले लेती है हमारे। और वो डाउट अगर सच्चाई पे आधारित है तो ठीक है, बट अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का वहम है तो वो हमें चैन से जीने भी नहीं देगी और पता नहीं हमारे हाथ से क्या क्या करवाएगी। सो शंका जो है उसको फैक्ट से, फिगर्स से, सच्चाई से तोल के देखो, फिर देखो सच है या नहीं, नहीं है तो ड्रॉप करो। शंका लेके घूमना, शंका सबसे बड़ा हेडेक बन सकता है, उसको वहीं पे वहीं खत्म कर दो। अच्छा, लोग इसके साथ खेलते भी हैं, लोग जानबूझकर किसी के मन में शंका भी डालते हैं। तो जो आप कह रहे थे ना शिवाजी महाराज की जो टेक्निक थी गुरिल्ला वारफेयर के अंदर, उसके अंदर एक टेक्निक शंका वाली भी है, वो भी है, नीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर बात करिए, डाउट, सस्पिशन क्रिएट करना कितना पावरफुल टूल हो सकता है, और खुद ही हमने हमारे मन में ही डाउट क्रिएट कर दिया तो फिर और ही क्या कहना, हम अपने ही दुश्मन बन के बैठे। सर इससे एक और यह भी सीख मिलती है कि हमें संयम का अभ्यास कितना जरूरी है। बहुत हम लोग जरूरी है, संयम का अभ्यास ही नहीं करते। बिल्कुल सर। कधी कधी शंका करतात, शंका करते हैं, राइट, खरं संयम, ठरतात. हाँ राइट राइट राइट, कभी कभी शंका सही साबित होती है, दैट्स ट्रू, बट हमेशा हो ये भी तो नहीं ना। शंका एक तरीके का इंडिकेशन है, एक तरीके का इंडिकेशन है कि कुछ एक मैसेज है। आई एग्री, इंस्टिंक्टिवली जो हम फील करते हैं वो सही भी होता है, हमेशा गलत होता है ऐसा नहीं, बट हम इंसान हैं हमारे पास सोचने की ताकत है, हमारे पास संयम की ताकत है, तो इसके लिए हमें उसका उपयोग करके फिर एक डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ शंका सच है या नहीं है, और उसके आधार पे कदम उठाना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए उसके बेसिस पे। अगर इस पूरी कहानी को हम ध्यान से देखें ना, तो शुरुआत में ही ब्राह्मणी और उसके पति ने जो नेवले को अडॉप्ट किया, वो किस मानसिक परिस्थिति में किया? क्या वो आराम से सोच समझकर उन्होंने डिसीजन लिया था, या फिर भाव में बहकर, इमोशंस में बहकर वो डिसीजन लिया? भाव में बहकर, भाव में बहकर, इमोशंस में बहकर। उन्होंने वही मंगूस जिसको इतना प्यार से उन्होंने अडॉप्ट किया था, आगे चल के हमारे साथ भी होता है ना कभी कभी से, भाव में बैठकर एक छोटा सा कुत्ता बड़ा प्यारा लग जाता है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर 1-2 साल के बाद ऐसे सर पे हाथ दे के बैठते हैं, अरे यार अब इसको संभाले होगा। बचपन में सब क्यूट क्यूट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक लगता है, और उस भाव में हम बह जाते हैं। शायद नेचर ने, प्रकृति ने उनका चेहरा इतना क्यूट इसके लिए बनाया बच्चों का, ताकि ये भाव जगे। और आगे का सोचना चाहिए हमें, थोड़ा सा सोचना चाहिए, वरना हम फंस सकते हैं। मंगूस ने गलती की क्या? नेवले ने कुछ गलती की? नहीं, नहीं। वो भी भावना में बह के चला गया, दौड़ते दौड़ते बताने को मेरे भाई को मैंने बचाया। वेरी गुड वो भी भावना में बह गया, वो भी इमोशन में बह गया। वो अगर चुपचाप घर के अंदर रहता, वेट करता, पेशेंस रखता कि माँ अंदर आए, तब क्या ये घटना होती? क्या ये दुर्घटना होती? नहीं होती। नहीं होती। वो भी बह गया इमोशन में, हम भी बह जाते हैं ना कभी कभी, हमारे
हमारी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने के लिए हम जाते हैं बाहर और फिर बाद में फंस जाते हैं। चुपचाप कभी कभी शांत बैठने से भी काम हो जाता है। नहीं, उसकी गलती दूसरी ये भी है सर कि वो सांप को ले जाता मुंह में, बाहर जाना ही था तो। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। बच्चे भी यही बोलते हैं कि सांप को ले जाता। सो इसके पीछे हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि अगर आपको अपने उपलब्धियों का बताना है, किसी को दर्शाना है, तो ब्रिंग डेटा टू द टेबल, ब्रिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एविडेंस टू द टेबल, जिससे वो माने, और वो आपके प्रोक्लेमेशन को स्ट्रांग बनाता है, वो आपके उपलब्धियों को सही साबित करता है। सो वो बहुत जरूरी है। अपने साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके जाना, कभी भी सर्टिफिकेट लेके जाना, एविडेंस लेके जाना। तो आपने बहुत सही कहा सर, मिलन सर, कि सांप को मुंह में लेके जाता तो बात अलग होती। एविडेंस, डेटा, प्रूफ, राइट। चलिए एक और पॉइंट, अदरवाइज सर आजकल अखबार में सर ये आता है, छोटी छोटी बातों पर माताएं बच्चों के साथ आत्महत्या करती है, 2-2.5 साल के बच्चे के साथ आत्महत्या करती है। बहुत बुरा लगता है सर इस बात को सुनकर, पढ़कर। तो इसके लिए कुछ उपाय हो सकता है क्या सर? ये छोटी छोटी बातें बहुत छोटी छोटी रहती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो आत्महत्या कर लेती है। अब ये देखिए, मतलब ये जो फिलहाल के लिए जो फोरम है वो उस पर ये चर्चा कितना सही है, गलत है, या फिर मैं कितना केपेबल हूँ इसके बारे में कुछ बोलने के लिए मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली का है, दोस्तों का है, किसी गुरु का है, किसी अच्छे दोस्त का है, तो ये हेल्प करता है ऐसे परिस्थिति। आज के डेट में ना इंसान ऐसे, वो सपोर्ट सिस्टम हट गया है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम हट सा गया है, क्लोज रिश्तेदार या फिर क्लोज फ्रेंडशिप का सपोर्ट सिस्टम हट गया है। वो अगर रहता था ना तो पहला वो थोड़ा निकल जाता था, उसको इसके बारे में उधर बुराई करके थोड़ी बात चाहते में निकल जाता था। आज अकेला आदमी थोड़ा सा, और वो भी सोशल मीडिया के चलते अंदर ज्यादा जा रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है, बाहर निकलने का जरिया थोड़ा कम है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जस्ट माई ओपिनियन, आई टोटली अग्री। सुनने में थोड़ा संवाद हो नहीं रहा है। संवाद जिस हिसाब से होना चाहिए, फेस टू फेस संवाद जो पहले घर में हुआ करता था। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो दादाजी दादाजी अब जो भी शाम 7 बजे 8 बजे के बाद सब ऐसे बाहर जाके गप्पे करना, शेयर करना, चुगली करना, तो भी चलेगा, बट वो निकल जाता था। अब वो थोड़ा एक्यूमुलेट सा होने लगा है, और यहाँ वहाँ चीज़ें देख देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख देख के और भरा जा रहा है। बाहर निकलने का रास्ता कम है, अंदर भरने का रास्ता बहुत होगा। थोड़ा कुछ मिल जाए तो शांति हो दिमाग को। ऐसे मेरा ओपिनियन। संस्कृति में बदलाव आ रहा है, काफी बदलाव आ रहा है, और बड़े डेंजरस है। 10 साल बाद क्या होगा पता नहीं, ऐसे डर लगता है देखने के बाद। नहीं, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, इंसान है, संभाल लेगा। बस हमें अपने आप को संभालना है और चीजों को देखना है, समझाना है। हम अगर अपने आप को भी संभाल लें, आसपास के हमारे परिवार को भी संभाल लें, और हमारे स्टूडेंट्स को सही चीजें बता दें, तब भी काफी है सर। अपने आप को ही संभालना, प्रयास तो जारी रहता है सर, प्रयास जारी रहता है। यही छोटा मोटा प्रयास अपने को करना है, बाकी तो जो लिखा है वो, जो होना है वो। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू। ओके, सो यस, एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स? ये कुछ चीजें थी मदर स्ट्राइक। If you have, you can ask मेरा नाम भरत दास है। My email ID is dashbharat@gmail.com. This is my WhatsApp number. In case you wish like sharing something or asking something, you can do that. पढ़िएगा ज़रूर, और कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइएगा। नीति शास्त्र एक बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत, और ये भी ये सिर्फ पढ़ने वाला विषय नहीं है, ये उपयोग में लाने जाने वाला विषय है। So it's absolutely a practical subject which can be implemented every day. इसके बारे में चर्चा कीजिएगा आपस में, अपने स्टाफ रूम के में चर्चा कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा, उनसे सुनिएगा। Excuse me, sir. जी सर। Sir, विजय this side. Yes sir. Sir, I want to know that पंचतंत्र तंत्र जो होता है, या फिर जहाँ से उनकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से ली गई, मतलब जो लिखते थे। हाँ,
जी जी। तो ऐसे कहा जाता है कि पंचतंत्र की के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी कहानी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, ऐसे नई कहानी नहीं है। बहुत सारे सर वो सोर्सेस हैं। जातका टेल्स से ली गई है सर एक्चुअली, क्योंकि नहीं सारी कथाएं जातका टेल्स में हैं और अच्छा। मैंने पढ़ी है सब सारी। अच्छा, तो बहुत क्योंकि सारे थियरीज जातका हैं। टेल्स जो है वो इंडियन कथा साहित्य का ओरिजिन है और वहीं पे सब मिलता है, ये भी एक सच्चाई है। ओके ठीक है, ये भी एक थियरी। मैं बहुत सारी चीज, मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूँ जितना मैंने रिसर्च किया। जातक कथा, पंचतंत्र की कथा, हितोपदेश वगैरह जो भी है, ये सब एक सिमिलर लाइन में आती है। दिस आर कॉल्ड डायडैक्टिक टेल्स। ये एक ही परंपरा के हिस्से हैं। जातक टेल्स नीति के अंदर थोड़ा कम, और वो नीति शास्त्र का एलिमेंट कम है उसके अंदर, और धर्म शास्त्र का एलिमेंट ज्यादा है उसके अंदर जातक कथा में। पंचतंत्र के अंदर धर्म शास्त्र का एलिमेंट कम है और नीति शास्त्र का एलिमेंट ज्यादा है। ये सारी कथाएं जो है, ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले 1 लाख के ऊपर कथाएं लिखी गई थी, जो एक पूरा समूह बना था जिसको बृहत कथा कहते हैं। बृहत कथा बहुत पहले लिखी गई थी। बृहत कथा वाज अ मास्टर सोर्स, जिसमें से बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं निकली थी, जिसमें से कथा सरित सागर भी एक निकली। कथा सरित सागर खुद में एक बहुत बड़ी किताब है, और उनमें से फिर बहुत सारे चीजों में निकलने से एक था पंचतंत्र। पंचतंत्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे जो कहानियां हैं वो महाभारत में भी पाई जाती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है कणिक, और कणिक जो कथा सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, उसके अंदर भी वही एलिमेंट है जो पंचतंत्र में पाया जाता है। पंचतंत्र का ये कहानी की बात कर रहा हूं। अब कहानी के अंदर जो सूत्र हैं, जो कहानी मैसेज नहीं है, कहानी नॉलेज नहीं है, कहानी माध्यम है। कहानी के अंदर जो सूत्र हैं, जो नॉलेज है, पंचतंत्र का जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा डिराइव हुआ है कौटिल्य अर्थशास्त्र से, चाणक्य नीति से। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। तो अगर हम पंचतंत्र के अंदर की बात देखें, कहानी को अलग रख के अगर हम उसके मैसेज को देखेंगे, तो बहुत सारे फ्रेमवर्क बाहर आते हैं। वो सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। सो वी कैन से पंचतंत्र का जो सोर्स है वो बहुत सारा है। बृहत कथा है, जातक कथा है, महाभारत है, लोक कथाएं हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र है। इन सब का एक अच्छा संतुलन सा लाके, एक अच्छा सा समावेश करके इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये पंचतंत्र है। तो ऐसा बोलना कि ये एक चीज से डिराइव्ड है, ये गलत होगा। ये मल्टीपल सोर्सेस से डिराइव्ड है। अगर आप पढ़ोगे, इन सभी सोर्सेस को पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब में ये मौजूद था, और खासकर कौटिल्य अर्थशास्त्र, खासकर क्योंकि अब एक आम आदमी क्या जानता है, पंचतंत्र सिर्फ कहानियां हैं। नहीं, पंचतंत्र के अंदर अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के एलिमेंट्स हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये ज्यादातर कौटिल्य अर्थशास्त्र से इंस्पायर्ड है। मुझे डायरेक्ट रेफरेंस दिख जाता है। इफ यू कैन सी, दोनों पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली से। एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन है? Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. You have been one of the most interactive audience. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कही और पूछी। Thank you. थैंक्स सर जी, थैंक्स। चलिए, if there are no questions, हम यहाँ पे रुकते हैं। I extend my heartfelt thanks to respected Bharat sir once again for giving your valuable time and enlightening us on different aspects of Niti Shastra via your storytelling. Thank you so much, sir, once again from all of us. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you to the university for this opportunity. Wish you all the very best. Thank पढ़ते you. रहिएगा, Thank discuss you so करते much, रहिएगा। sir. Thank you. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you. Have a nice day. थैंक यू फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज रुकते हैं। आई होप आपके आज के सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। वंडरफुल सेशन डिलीवर्ड बाय ऑल द 3 रिसोर्स पर्सन्स टुडे। सो सी यू ऑल टुमारो with the new insight about Indian knowledge system. Thank you all of you once again. See you all tomorrow at 10:30. Thank you all of you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. फ्रेंड्स, आप लोग मीटिंग को लीव करिए क्योंकि मेरा तुरंत अभी दूसरा सेशन शुरू होगा।
So you kindly leave the meeting. See you all tomorrow. Thank you, all of you. Thank you. Okay, ma'am.